starting the session without wasting any more time. So, good evening to one and all. And I, Shomujit Kaur from Team Abhilasha, welcome you all in our webinar of Toppers Talk, where we will interact with the best ranking seniors of us. Well, today is the first day of the series of interactions, and I take immense pride to welcome our seniors as well as our speakers of the day, Mr. Swapnil Kumar Singh, IIT JAM All India Rank 147, BHU MSc Zoology General All India Rank 49, BHU MSc Biochemistry General All India Rank 94. Heartiest congratulations to Swapnil Bhaiya for securing these whooping ranks and making us all proud. Next, I welcome Mohammad Siraz Ansari Bhaiya. You're welcome, Bhaiya. Next, I welcome Mohammad Siraz Ansari Bhaiya, MSc Environmental Science, All India General Rank 7, BHU B.Ed Life Sciences, General All India Rank 29. Congratulations to you too, Siraj Bhaiya. Thank you, Samajit. Thank you. You're welcome, Bhaiya. So today's session will be basically divided into two parts. First, I will ask our speakers some questions which confuses us all, and the second part will consist of question and answer round between the attendees, the other attendees of the webinar, and they can write their queries and doubts in the group chat. So without wasting any more time and taking speakers Bhaiya's permission, let's start our first session today. Maybe proceed. Okay. Yes. We are honored, Samajit. Thank you. So my first question will be a general question from all of us studying for our entrance. From our juniors who will be preparing for the entrance soon, that how to prepare the syllabus and what should be our clear strategy while to prepare the syllabus. You can answer turn-wise, like Swapnil Bhaiya first, Siraj Bhaiya second, or Siraj Bhaiya first, Swapnil Bhaiya second, as you want to. That will be the first question. Thank you. So as far as different exams are concerned, you know that the basic exams are all which you all have to attempt is BHU Geology and BHU Botany, if the students are from life science background here. So the syllabus in this exam need not to be cited because that is so well given in the syllabus book of the institution. So as far as BHU is concerned, I will suggest not to go in different directions and just stick to the class notes which is being provided by the teachers, because the questions in the past years as well as this year have been straightforward from those notes only. But yes, the thing is that you need to take care some of the things in the case of BHU exams, that the questions are not always from something which is written down in your book or written down in your classroom notes. Sometimes it is so unexpected that you cannot even imagine. Like many times when we go inside the practical classroom, then we generally focus on the principles, on the methods, procedures, just because we want to focus on the semester examinations, and we think that we are not going to have any kind of relation with that in the coming future. But sometimes the questions come directly from the classroom, and it's completely dependent on the chance memory which you had at that time. Like, for example, if you have studied the fourth semester practical, I know this has been so, this calamity has taken a lot of things from you. This time you have not attended a lot of practicals. But one example, let me cite you, that the sericulture setup which is kept in the lab, zoology lab, during the demonstration of the economic zoology, when that particular life cycle setup, that may be artificial setup or that may be a natural one, is kept depicting the life cycle, like the eggs, pupa, males and females mating. That kind of demonstrating setup is kept. We generally look at it and pass by. We make it in the practical copy and we go. And after the examination, we never imagine what kind of question can come. But you cannot imagine, there was a question in this exam in 2020, that what is a multivoltine shell
or what is the term multi-volatile related to? Okay, and from the feedback of many students which I have asked about this question, they couldn't answer because they had never imagined that when that day when we had seen that particular setup of sericulture life cycle, that question will come from directly from the lab. Okay, so that is a carelessness, or let me say that we don't often focus on small things, but that belongs to the sericulture, and that was a question that was scoring, but many couldn't answer that, and that has become or may become a great difference between the marks of students. So this is the thing, like a globefish, which we in animal kingdom practical, when we are going to spot the specimens, a globefish was kept. Hardly few of the students had remembered that that thing is going to come in the examination, that what is a globefish, whether it is a real fish or it is some common name of another insect or something. But that, so the gist is that we have to focus in the practical classrooms, because the questions may come directly from the practical life. Otherwise, just stick to the syllabus, and in order to get used to the syllabus, you must go on to read the books, not do not get dependent over it so obligatorily that you leave everything other. Just you have to understand the syllabus, that what the syllabus includes, that is enough for BHU. You need not to go in extreme detail of everything, like if you are going to read DNA replication, then you start reading entire Leninger or entire Watson. That will be not so beneficial for BHU, because BHU has very confined boundary about the syllabus. So this is all about BHU examination. Yes, few more things I can suggest is that in animal kingdom, which is being taught in BHU, many times they go on to teach a very good book, a very standard book. Okay, so if you are interested, you can go for it, but I won't suggest you for, if as far as the selective study is concerned, because Portfall book, which is the very basic book which is suggested, that is enough in itself, and no question I bet is going to be out of that. Okay, so do not go to read any standard book in so much detail. That may increase your knowledge, but that is not going to increase your marks. So better you devote that time for some other subject. Okay, so that will be very beneficial for you if you are going to do the selective study. And yes, one more thing, for any examination, may it be BHU, may it be IIT JAM, may it be another examination, techniques is important. Biotechnics is always very important, and many people ask that how to deal with biotechnics. Although I myself haven't deal very good with biotechnics, but I have been experienced with how you can solve the question, like the zoology syllabus, which quotes some of the topics of biotechnics. You need to do that in very detail, like electrophoresis, centrifugation, or spectroscopy, pH meter. These are things, if you can cover in great detail, well and good. Otherwise, rest of the techniques, just know the applications, just application and nothing else, because no one is going to ask you in extreme detail. The syllabus which has been devised in BHU for zoology biotechnics, that is very selective in itself, because I have experienced that in every good examination they are going to into detail of that. Otherwise, for rest of the techniques, they are just going for the application. For example, they are going to ask that what is DNA footprinting. They are DNA footprinting, and the answer is simple, that it is required for studying the interaction between the protein and DNA. So they are just going to ask, this is not in BHU syllabus, DNA footprinting. So we just need the application, nothing else. What is the use of that technique? That's enough. So that will save your time, as well as that will give you the marks which is required. So in that case, techniques, I will repeat again, that what is prescribed, read in detail. What is not prescribed, just read the application. Otherwise, nothing else. This will be enough for any other examination, may it be IIT JAM, may it be BHU, or anything else. Apart from this, I will like to come for the syllabus of IIT JAM. So IIT JAM, I know there is very well prescribed syllabus in any of the competitive books or previous year question which are going to buy from the market. You can get a very good prescribed syllabus. But as far as citing the syllabus here is concerned, let me cite that the syllabus contains chemistry, physics, maths, and biology.
Maths, as far as maths is concerned, I will like to suggest you only few of the very selected topics. Very few selected topics. You need not to study, because it itself is very sweating for you to study 11th and 12th mathematics at this level. Okay, because many of the students are not from dual subjects, so they find it a challenging job to study math. So just few topics I will cite, like calculus, differentiation and integration, complex number, then limit and derivative, probability, mean median mode graphs, like deviation of mean median mode, this type of questions, and metrics. These are the only topics which you have to focus in maths. While solving the previous year questions, if you find some other topic that may be hardly out of this, and then you can focus over there, but mainly these 7 topics, if you are going to focus upon, then maths will be clear. One very important topic which I'm keeping from the boundary of any subject like math, physics or chemistry will be proton NMR, because every question in the every year in the paper of IIT JAM, proton NMR is being asked, and that is, if you are going to clear that are the marks for free, because there is must that proton NMR will come. You can take a view of any previous year paper and you will find that HNMR is there. Yes, I accept that while finding the content for HNMR, you will face problem because on YouTube also there is not so good material about the HNMR, but you will have to do some hard work for this, because there is no substitute for this, because that marks are for free. So please do HNMR, that is very essential. And otherwise, chemistry and physics, if you have very good notes from your coaching of NEET and IIT, whatever you have done, okay, and if you have very good source to study, well and good. Otherwise, YouTube channels, there are a lot of video tutorial channels on YouTube which teach physics and chemistry, and that will be enough for physics and chemistry. To recite, I will say that Physics Wala is a channel. I know this is a very famous channel these days. So Physics Wala is a very good channel to read physics and chemistry. Maths, as far as maths is concerned, yes, maths is concerned, there is a channel on YouTube, CBSE classes. Okay, so as far as CBSE classes is concerned, the good thing is that gives the theory, that gives the examples, that solves the concept, and that solves the question as well, which is given in NCERT, and you need not to go out of NCERT. You need not to solve R.D. Sharma, R.S. Agarwal for 12th class mathematics. Just do his videos, CBSE classes videos, and that is enough, and nothing is going to come out of that. That I can take surety that nothing is going to come out of that. As far as the syllabus of life science is concerned, what I remember now is, yes, cell biology, genetics, bioenergetics, immunology, molecular biology. These are the things which are the hotspot areas for any of the good exams. Okay, like IIT JAM, TIFR and all. Okay, so as far as cell biology is concerned, yes, Pathfinder publication books are there. Very few people are going to suggest you about taking that book, because they don't find it standard. They don't find it standard to even advise that. But I think that is a necessary evil, because many times when you don't have the time to go for the greater details of standard books, that is helpful in citing you things in short. So I will like to suggest you that you should have that part 1, part 2 and biotechnics book of Pathfinder. But yes, you need not to be completely dependent over that, because we have a natural tendency to go towards easy things, because we want to run away from the long, big things for standard books. So how to read that book? Like, if you are studying cell biology, you can prefer the Pathfinder. But cell biology have a very greater section called cell sorting or protein sorting, where we study about how the proteins travel inside the cell between different organelles. For that, you must refer to Alberts. I will like to suggest, because Alberts is going to give you a very confined, good and broader view of that topic, because this topic is going to be very, very beneficial for other domains also, like cell signaling and all. So I will suggest you to not go for Pathfinder for this, just go for Alberts. For rest of the cell biology, you can go for Pathfinder, because rest of the cell biology is just factual. And yes, many times we get so and energetic that we go on to read even membrane potential and membrane lipids and membrane proteins from the Alberts. That will take months
for you to complete that, and it will be very boring and you may reach your saturation level. So I will like to suggest that no one is going to ask you questions which is going to be in the details of research. So I will like to suggest you that get confined to Pathfinder for this. So once again, I would like to repeat that for cell biology, except cell sorting, read it from Pathfinder. Only read cell sorting from Alberts. I think it is near 500 page number on Alberts. You may see the cell sorting chapter from the Alberts. Many may suggest you to read it from Lodish, but I will not suggest you go for Lodish, but because Lodish may involve a much greater detail which you need not to do at this stage. Apart from this, genetics is concerned. For genetics, do not go for Pathfinder for genetics, because there are two very good books, easy and very not so boring books like Pearson and Klux and Cummins. Mainly Pearson means you have to cover 95% of genetics from Pearson, because Pearson genetics is a very good book to cover things in extreme detail, because many times in genetics you need not to learn the facts, you just need to get the concept. Like very few learn the difference between incomplete dominance and codominance. That detail you can get only from that book, Pierce Genetics. But some of the topics in Pierce Genetics are not enough. So when you will go through that Pierce Genetics, you will find that some topics like when you are going to study the sex determination in Drosophila, okay, so you are not going to get a very good greater detail of that in Pierce. For that you must refer to Klux and Cummins, because that is so. Klux and Cummins should be only complementary. Main book is Pierce book. So when you find that some topic is not good in Pierce book, like that of sex determination in Drosophila, then you can go to Klux and Cummins. Otherwise, only Pierce Genetics. The next topic is bioenergetics. Bioenergetics, you do it from Pathfinder. Some of you may get interested to do it from Garrett's book, but remember that Garrett is a book with extreme detail, and that will give you that sometimes bioenergetics deals with the free energy, delta G. So what happens that delta G values are often cited to differentiate between the concepts, but that creates a kind of traffic in your mind that you cannot deal with. So at this stage, you must escape delta G. Except Hyderabad University, no one is going to ask you the questions regarding delta G of the equations. So I will like to suggest people that don't go for Garrett's delta G concept, just go for the simple concept. Otherwise, if you're not that much enthusiastic enough to go for Garrett's book, Pathfinder is enough or more than enough for bioenergetics. For the clearance, let me say that bioenergetics includes like respiration, photosynthesis, and other things which deal with the incoming and outgoing of ATP and all, like so that kind of things. Immunology do it from Pathfinder, because QB is also a very huge book. I don't think you should go for that. You can refer for diagrams, but QB is not so suggestive at this level, because I myself haven't read it, so I can't suggest. Pathfinder is enough for immunology. You can go for diagrams, like when you study for the hematogenesis, and you go for the study of myeloid progenitor cells and the leukoid progenitor cells. At that time, you can refer to QB just for diagram and nothing else. Otherwise, immunology is enough from Pathfinder. Molecular biology, a huge section. I will like to suggest Watson's book for molecular biology. Many of your teachers may suggest you Leninger, and in 90% cases you are going to be taught by Leninger. But I will like to suggest from my personal experience that Watson is a very good book, because on the basis of the diagrams, on the basis of the applicative connection which they make with the topic, that is a brilliant thing to refer. Transcription, translation, or DNA replication, everything which you have to read, just go with the Watson. You can decrease your dependence on Pathfinder for these topics, because once you read Watson, you need not to go for Pathfinder. But yes, sometimes to refer to the things or to go through the things in very short, you need to take the Pathfinder. But yes, don't read translation from Pathfinder, because I personally feel that there are some mistakes, or there is some mistake in the sequence of the events of translation which is given in Pathfinder. So just refer to the Watson. Yes, one very important aspect of molecular biology is operon system.
which is connected with the genetics, because when you will come in your 6th semester, you will get a lot of questions in your semester as well as in your entrance examinations with the operon system getting connected with the genetics, because the merozygotic questions, the question am I audible? Continue, bhaiya. It was paused actually, So your video. there was a call from some company and all, they never leave you alone. So what I was saying, operon system. So for operon system, just refer to a YouTube channel, IFAS online classes. This is a very good channel because it will give you a perspective about lac operon. Once you get the perspective about lac operon and basic terminology like what is inducible, what is repressible, what is negative control, what is positive control, what is inhibitor, what is activator, what is repressor. Once you get the insight of this, you can do tryptophan operon very easily, and tryptophan operon will always be secondary to lac operon. Lac operon is primary to understand the operon system, and operon system is going to be a huge assistance in reading the bacterial genetics when you are going to deal with the genetics section. So IFAS online classes, just do operon system from there, lac operon system from there, and then go to the pathfinder for tryptophan operon, and then accumulate these two topics to understand the bacterial genetics. Apart from that, this whole life science or this whole IIT JAM, BHO and all will be supplemented by one more thing. You have to make, when you go through your studies like molecular biology, genetics and all, just make a table of ratios. Like you would have been familiar with the ratios of epistasis, recessive epistasis, dominant epistasis, dihybrid cross, monohybrid cross. So when you are going to attempt the NAT section, numerical assessment testing of the IIT JAM, so that question, that section is very beneficial, and there you have to write direct answer. Like they ask what is the F2 ratio for dihybrid cross, so you give 9:3:3:1. Okay, they ask you what is the recessive epistasis ratio, 9:7, like that kind of thing they ask. So just prepare a tablet notes for this kind of ratios. For inhibitors also, like they ask you the inhibitor of transcription, inhibitor of translation, that make a list of that. Then make the list of coenzymes and mutagens. Yes, mutagens also very important, so that you can learn these things just before the examination. So this is from my side. Now I will like to Siraj to proceed over this topic. Thank you, Swapnil, for giving me that was very detailed. time. That was very detailed. Moving on to Siraj Bhaiya. Siraj Bhaiya, please. Okay. So thank you, Soumyajit, for inviting me for here. और ठीक है, मैंने इन्वायरमेंटल साइंसेस का एग्जाम दिया था और बीएड लाइफ साइंसेस का और बॉटनी का, एमएससी बॉटनी का। ठीक, तो मैं सबसे पहले एमएससी बॉटनी के सिलेबस एनालिसिस पे बात करूंगा, फिर उसके बाद इससे ये कैसे बीएचयू एंट्रेंस है और अदर यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सबसे कैसे इनका सिलेबस डिफर है, मैं उस पर बात करूंगा। ठीक, तो एज फार जैसे स्वप्निल ने कहा कि प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीएचयू एंट्रेंस के लिए, तो सही बात है। यहाँ पे जो बीएचयू का सिलेबस होता है सेमेस्टर का, चाहे वो थ्योरी पार्ट का हो चाहे वो प्रैक्टिकल का हो, दोनों ही का इक्वल वेटेज आप कह सकते हैं रहता है। आप प्रैक्टिकल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे इसका पेपर पैटर्न जैसे रहता है कि 120 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एक एक, और टोटल 360 का पूरा पेपर होगा। ठीक, तो इसमें मेजर पोर्शन आप क्रिप्टोग्राम को देखेंगे। ठीक, क्रिप्टोग्राम से ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, कम से कम 60% और 40% आपके अप्लाइड वाले रहेंगे। ठीक, तो क्रिप्टोग्राम में भी अगर हम सेपरेट करें सारे टॉपिक्स वाइज, तो पहले एल्गी आएगा। ठीक, एल्गी आप कवर कर सकते हैं सिंह पांडे जैन से। ठीक, आप उसके लिए अपना नोट्स बनाइए, और नोट्स में जिसमें आपकी 2 तरह से एल्गी में क्वेश्चंस आते हैं, पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होंगे और दूसरा आपका मेंबर बेस्ड होगा।
ठीक, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको रिप्रोडक्शन वगैरह पूछेगा और पिगमेंट सिस्टम, ये सब क्वेश्चंस होंगे उनसे। आपकी अलग अलग क्लासेस में कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उनके क्या फूड रिजर्व मटेरियल्स होते हैं, ये सब क्वेश्चन को मिलेंगे। ठीक, और आपके रिप्रोडक्शन पार्ट से एसेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनके स्पोर्स कैसे होते हैं, और फिर इन सब के बेसिस पे उनके पेक्यूलियर फीचर्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक, मेंबर बेस्ड आप देखेंगे तो उसमें जो भी बीएचयू के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे साइनोफाइसी में आप नॉस्टॉक, साइटोनिमा देखेंगे, और क्लोरोफाइसी में आप देखेंगे जो भी फिस्टिजिला है, और अलग अलग चीजें हैं जो भी मेंबर्स हैं उनके उनके आप लाइफ साइकिल में मेन रिप्रोडक्शन पे फोकस करें। ठीक, रिप्रोडक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ज्यादा पूछी जाती हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आप थैलस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वो भी पूछा जाता है पर उतना उसका वेटेज नहीं होता है। ठीक, इसी तरह आप इसको एल्गी को एक अदर रेफरेंस से भी कवर कर सकते हैं। एक चैनल है, यूट्यूब चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, आप वहां से इसको कवर कर सकते हैं। वहां पे एक प्रोफेसर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टोग्राम्स में ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट के लिए आप एसपी जैन, वही सिंह पांडे जैन की आप बुक यूज करिए, उसमें भी इसी तरह के सवाल रहेंगे, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे और कुछ मेंबर बेस्ड पे। मेंबर बेस्ड में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केंशिया दिखेगा, उसमें इससे सवाल ज्यादा आते हैं, उनके आर्चिगोनियम पे, एंथीडियम पे, इन सब पे। और प्लस एक थ्योरी है स्टेरिलाइजेशन थ्योरी, प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन थ्योरी, उससे आप कंपैरेटिव उसका आप सारा मेंबर्स पढ़ेंगे। वहाँ पे जैसे स्पोरोजिनस टिश्यूज कैसे घट रहे हैं उनका सक्सेस से, तो आप डिफरेंट क्लासेस के ब्रायोफाइट्स में आप पढ़ेंगे, जैसे हिपैटिकॉप्सिडा एंड एंथेरोसिटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में। ठीक, तो आप यह कुछ अदर आपको मिल जाएंगे इसमें मेंबर्स, जैसे पोरेला एंड पेलिया, उसमें आपको कुछ पेक्यूलियर एंथीडियो 4 वगैरह मिलेंगे, वो बहुत पूछा जाता है एंट्रेंस में, जो कि बीएचयू के सिलेबस में नहीं है। ठीक, थर्ड आपका आता है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स भी आप सिंह पांडे जैन से कवर कर सकते हैं, उसमें सारे बहुत अच्छे डिटेल में दिया हुआ है। उसमें भी मेंबर बेस्ड सवाल होंगे और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे होगा। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइट्स में होता है आपका जियोग्राफिकल स्केल, आप उसको बहुत अच्छे से करेंगे कि कौन सा टेरिडोफाइट किस एरा में आया है। ठीक, और इसको आप करेंगे अच्छे से। इसमें मेंबर बेस्ड में आप मार्सिलिया कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलोटम में भी सिनेंजिया वगैरह पाए जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। और टेरिस है, टेरिस है, इन सब में भी जो फीचर्स हैं, पेक्यूलियर फीचर्स, वही से फोकस करने हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेस पे उतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो इतने नहीं पूछते हैं। ठीक, और आप इक्विसेटम को बहुत अच्छे से करेंगे। इक्विसेटम में जैसे कैरिनल कैनाल है, वेलिक्यूनल कैनाल है, ये इनका ओरिजिन कैसे होता है, ये यहाँ पे बस इतना ही पढ़ना है। ओरिजिन क्या कैसे होता है और उनका मॉर्फोलॉजी, इनका कॉमन नेम क्या है। ठीक, जैसे आप इक्विसेटम को देखेंगे तो वॉकिंग फर्न बोला जाता है। इस तरह से जो मेन मेन है वो आपके कॉमन नेम्स भी पढ़ने हैं। जैसे सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला में उनको स्पाइक मॉस बोला जाता है। ठीक, तो ये सब पूछे जाते हैं डायरेक्टली। इसका सिलेबस बहुत जो क्रिप्टोग्राम का है वो बहुत डिटेल में नहीं है, बहुत लिमिटेड है, लेकिन फिर भी इससे इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। आप फिर फिनेरोगेम्स में आएंगे, जिसमें ब्रॉडली 2 कैटेगरी में है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म आप कवर कर सकते हैं भोजवानी की बुक से। ठीक, उसमें भी मेंबर बेस्ड सवाल होंगे, जियोग्राफिकल स्केल पीरियड से सवाल होंगे, और आपके लाइफ साइकिल से होंगे जो भी। ठीक, तो इसमें मेंबर्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नीटम। ठीक, क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स एंजियोस्पर्म से मिलता हुआ है। ठीक, इफेड्रा भी इंपॉर्टेंट है। इफेड्रा और नीटम में जो कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे डबल फर्टिलाइजेशन आपका इफेड्रा में मिलता है, नीटम में नहीं मिलता है, ये सब कुछ जो फीचर्स है वो आपको डिफरेंस क्लियर होने चाहिए। तो नीटम सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। और आप देख सकते हैं साइकस और पाइनस, तो साइकस में वही उसके लीफलेट वगैरह जो प्रैक्टिकल में कराए जाते हैं, आप उनका एनाटॉमी बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जिम्नोस्पर्म इतना ही रहेगा, जिम्नोस्पर्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हार्डली 3 और 4 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक, एंजियोस्पर्म इज सो ब्रॉड। ठीक, इसमें आप 2 पार्ट पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। ठीक, टैक्सोनॉमी में आप पहले तो सबसे पहले जितने भी फैमिली सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, आप उस फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए, क्योंकि उनके मेंबर बेस्ड सवाल बहुत आते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिखे रहेंगे और उनसे फिर फैमिली पहचाननी होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे होंगे, उससे आपको मेंबर पहचानना होगा। ठीक, तो आपको अल्टीमेटली वो घुमा फिरा के
आपके फैमिली बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछेंगे। तो उसमें भी फैमिलीज में बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली आपका सोलेनेसी आता है, जो कि इस बार भी आया था। एस्ट्रेसी मोस्ट एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो पेक्यूलर फीचर्स हैं लाइक पैपस वगैरह वो बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे ही और आपका रूटेसी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो विंग आपके विंग डॉटेड ग्लैंड्स वगैरह पाए जाते हैं, विंग पिटियोल पाया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो आपकी फैमिलीज में यही सब है। और इम्ब्रियोलॉजी कह सकते हैं इसका वेटेज ओवरऑल एंजियोस्पर्म में थोड़ा कम होता है, टेक्सोनॉमी ज्यादा आता है। टेक्सोनॉमी में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपको एनोमिलस फीचर जो प्रैक्टिकल में हम लोग करते थे फोर्थ सेमेस्टर में, वो बहुत पूछा जाता है। लाइक बिग्नोनिया है, निक्टेंथस है और वांडा रूट्स हैं, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। तो इनके एनोमिलस फीचर्स आप बहुत अच्छे से करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी में आप देखेंगे एम्ब्रियोसैक जो उनका डेवलपमेंटल स्टेज होता है वो ज्यादा पूछा जाता है, उसके टाइप्स पूछे जाते हैं कि इसमें कितने तरह के स्पोर्स वगैरह ये सब बहुत पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम विद एग्जाम्पल आप इसको बहुत अच्छे से टेबल को मगअप करेंगे। ठीक, इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म में आप न्यूसेलर सेलुलर ये सब पढ़ते हैं। इंडोस्पर्म में आपको ये सब चीजें बहुत पूछी जाती हैं। विदाउट एग्जाम्पल यू कैन गो, ओके, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए इंडोस्पर्म में। ठीक, आपके फ्लावर की एनाटॉमी में आपका आता है एंथर्स का स्ट्रक्चर। एंथर में जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं जो 12th बेसिस पे पढ़ाया जाता है वही सब रहते हैं। तो उसमें भी कुछ नहीं है, आप डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा कम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, एम्ब्रियो का टाइप पढ़ेंगे, मोनोकॉट और डाइकॉट में एम्ब्रियो कैसा होता है और उसके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है चेंजेस, वो सब आप पढ़ेंगे। उसमें टाइप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं पूछा जाता है। आप इम्ब्रियो सैक में देखेंगे एलियम टाइप का जो इम्ब्रियो सैक होता है वो ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो हर साल मतलब वो उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड आता ही आता है। तो इस तरह से आपका एंजियोस्पर्म कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आते हैं इकोलॉजी पे। इकोलॉजी की आप इकोलॉजी आप अपना जीएस सिंह जेपी सिंह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। जेपी सिंह 5th एडिशन जो बुक आती है आप उसे कर सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट चैप्टर्स हैं, आप उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कह लीजिए कम्युनिटी से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में भी उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, आप उसको करिए। फिर रोंकियस लाइफ फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, उसके एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं और उसके डेफिनेशंस कितने फॉर्म होते हैं। जैसे अभी इस बार आया था कि रोंकियस लाइफ फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं, तो 5 टाइप्स के। तो आपको काउंटिंग भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। टाइप्स आप अगर पढ़ रहे हैं, किसी के भी टाइप्स पढ़ रहे हैं चाहे वो एंजियोस्पर्म में हो, तो आप काउंटिंग जरूर करिए कि वो कितने में है, कितने टाइप्स के हैं। क्योंकि कभी कभी होता है इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल टाइप में वो पूछ लेते हैं और लोग रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो आप काउंटिंग जरूर करके पढ़ें, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के हैं उसमें ये सब। और आपकी कम्युनिटी में पूछा जाता है नीच, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके जो साइंटिस्ट हैं, जैसे वो टर्म कौन दिया था, उसका जो रोल है, ठीक, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इकोटोन और इकोफीन इसमें आता है, वो सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल्स भी आप कर लेंगे। ठीक, इकोटोन और इकोफीन। नेक्स्ट आपका इसमें है आपका हाँ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में आप इकोसिस्टम के टाइप्स वगैरह हैं, जो भी मॉडल्स वगैरह हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक, बेल मॉडल वगैरह। तो टाइप सिलेक्शन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीसीज का। ठीक, तो उसको भी आप करेंगे। उनके उनके अंदर डिफरेंसेस और जो उनका कर्व है उसके इक्वेशंस और उसके छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आप कर लेंगे। ठीक, उतना बहुत होता है बॉटनी एंट्रेंस के लिए। और नेक्स्ट आपका हाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आते हैं इकोलॉजी में। ठीक, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। ठीक, आपका इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो ये सब डेट्स भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी ओजोन डे था 16 अक्टूबर को। ठीक, तो ये भी पूछा गया है किसी प्रीवियस ईयर में। तो इस बार हमारे में आया था कि 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ये इस बार पूछा गया था। ठीक, तो इस तरह से आपका इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पोर्शन अगर आप क्रिप्टोग्राम से कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल वेटेज के होते हैं। ठीक, आपका पेनारोग्राम्स थोड़ा कम होगा। उसके बाद हम अप्लाइड पोर्शन में आते हैं। अप्लाइड पोर्शन में आप पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप कहाँ से कवर करेंगे, आप किसी नॉर्मल बुक से एल्बर्ट से भी कर सकते हैं।
और इसमें बहुत डिटेल में बॉटनी एंट्रेंस में नहीं पूछा जाता है। आप सिंपली ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ट्रांसलेशन का प्रोसेस, रेप्लिकेशन का प्रोसेस, उनके इनहिबिटर्स, इतने ही करिए, इतने में आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बहुत हार्डली सबसे एक एक दो दो क्वेश्चंस होंगे, और जो कि सिंपल प्रोमोटर बेस्ड, ये ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर का पोजीशन, उसके उसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, कहाँ पे बाइंड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं डीएनए के, ये वो तो सिंपल है, आप वो कर लेंगे, तो बहुत डिटेल में नहीं आता है। आप लाइफ साइंसेज में जाएंगे तो वहाँ डिटेल में आपको ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप हार्डली आप सिलेबस को देख लेंगे, इसमें क्या है टॉपिक्स के अंदर, वही पूछे जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यही सब है। आप जीन एक्सप्रेशन, जैसे स्वप्निल ने कहा था, लैकोपेरॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्टोफैन वाला नहीं आता है। ठीक, तो आप लैकोपेरॉन को ही बहुत अच्छे से करिए, और उसमें जो भी है उसके टाइप्स हैं वो सब पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी में। तो माइक्रोबायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो इवोल्यूशन, जो माइक्रोबायोलॉजी का गोल्डन एरा था, वो आप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप एकदम सीक्वेंस में डेट वाइज कौन से साइंटिस्ट ने पहला थ्योरी दिया, फिर उसके बाद जो थ्योरी दिया, तो उसको आप एक सीक्वेंस में याद करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस वर्ड से कंफ्यूज कर देता है, हु पुट फॉरवर्ड द थ्योरी ऑफ दिस साइंटिस्ट, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको सीक्वेंस में नहीं याद है तो आप गलत कर देंगे, तो आप वो सीक्वेंस में उसको पूरा एरा याद करेंगे। इससे माइक्रोबायोलॉजी में 3 एराज थे, ठीक, गोल्डन पीरियड्स, तो उसको पूरा करेंगे। उसमें फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका आएगा ब्रायो बैक्टीरिया। ठीक, तो बैक्टीरिया में आप कोई उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके टाइप्स करेंगे, मॉर्फोलॉजी पे क्या डिफरेंसेस है उसमें, जैसे मिथेनोकॉकस है वो आर्की बैक्टीरिया में, फिर उसमें भी कई टाइप्स के आर्की बैक्टीरिया होते हैं, तो उनसे मिथेनोकॉकस कैसे डिफर है। मिथेनोकॉकस ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद से आपका कहाँ कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उनका हैबिटेट वगैरह, उसमें भी कई टाइप से हेलोफाइट्स है वगैरह वगैरह सब पूछे जाते हैं, तो उनका आप हैबिटेट बहुत अच्छे से करेंगे। तो एक चीज मैंने मिस कर दिया, एल्गी में आप हैबिटेट जरूर करेंगे। हैबिटेट से भी सवाल आ जाते हैं, वो फ्रिक्वेंटली आ जाते हैं, किसी साल आते हैं किसी साल नहीं। जैसे इस बार आ गया था, पूछा था एल्गी में कि कौन सा एल्गी आपका हेलोफिटिक नेचर का होता है या सैलाइन वाटर में पाया जाता है, तो वो सारे सिलेबस में नहीं है सेमेस्टर के, तो वो थोड़ा अलग आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपको इजीली सिंह पांडे जीएन की बुक में मिल जाएगा, और जो मैंने आपको यूट्यूब चैनल बताया है मास्टर्स ऑफ बॉटनी, वहाँ पे भी इजीली अवेलेबल है। ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको माइक्रोब्स के लोकेशंस पढ़ने हैं, प्लस स्टेरिलाइजेशन थ्योरी जो है उसको थोड़ा डिटेल में आप पढ़िए, जैसे फर्मेंटेशन वगैरह भी है, पेस्चराइजेशन थ्योरी है, ये सब बहुत अच्छे से करिएगा। टेम्परेचर वगैरह इन सब में जो है इंपॉर्टेंट रहता है, वो पूछ लिया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। और वायरसेस हैं, जो कि इस बार मेजर पोर्शन वायरसेस से आ गया था। ठीक, तो वायरसेस के डिस्ट्रीब्यूशन, उनके किसमें स्पाइक्स पाए जाते हैं, किसमें एनवेलप होता है, ये सब आप पढ़ लेंगे। बहुत बेसिक है, बस एग्जांपल्स आप याद कर लेंगे तो भी वो कंप्लीट कर ले हो जाएगा उसमें। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम साइटोलॉजी में। तो साइटोलॉजी में बॉटनी के एंट्रेंस में सिंपली आपका का स्ट्रक्चर, उनका स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक, उतना ही इनफ है। जैसे इस बार आया था आपका गोल्गी बॉडी से, गोल्गी और लाइसोसोम से, तो ये ऐसे ही है, सिर्फ आपको सेल ऑर्गेनेल करना है। ठीक, और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस आप उसको एक बार देख लेंगे, 12th लेवल की जो होती है वही आता है। बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे तो इसमें आपके कई चैप्टर्स हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन एंड एमिनो एसिड, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में एमिनो एसिड स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ आप सिंपली एमिनो कौन कौन से उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, जैसे एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, ठीक, अनसिमेट्रिकल कौन है, सिमेट्रिकल वगैरह, ये सब ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह ये सब पढ़ लेंगे। एमिनो एसिड, फिर उसके बाद आप पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स पाएंगे, तो पेप्टाइड बॉन्ड, फिर प्रोटीन्स के टाइप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये सब आप करेंगे। उसमें सिंपली एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, ये हीमोग्लोबिन किस टाइप का है, क्वार्टिनरी टाइप का, इस तरह से एग्जांपल सिंपल होते हैं। कितने चेन्स होते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन में, ठीक, तो आपके 4 चेन्स होंगे, 2 अल्फा 2 बीटा वगैरह, यही सब पूछे जाते हैं। प्रोटीन्स हो गया। इस तरह से इंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में। इंजाइम के आपको पूरी कैटेलिसिस, उसका क्लासिफिकेशन, डिफरेंट क्लासेस जो हैं, कौन से इंजाइम किस क्लास से बिलोंग करेगा, उसका कोडिंग, और ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, जैसे ग्लूटाथियोन बार बार पूछा जाता है, ठीक, तो आप उसमें कितने पेप्टाइड होते हैं ये सब पूछा जाता है। तो
इस तरह से आपको कोफैक्टर कोएंजाइम्स के भी एग्जांपल, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, और एक जो जनरल इक्वेशन है एंजाइम का, होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम एंड प्लस कोफैक्टर्स वगैरह, वो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक, उसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा कोफैक्टर है या किसमें से कौन सा एपो एंजाइम का करेक्ट डेफिनेशन है। ठीक, तो ये सब आप उसमें कर लेंगे एग्जांपल्स के साथ। एंजाइम से कुछ नाम पूछ लिए जाते हैं, रिएक्शन लिखा होता है ये कौन सा एंजाइम करेगा, तो एंजाइम के भी नाम आपको रिएक्शन वाइज पता होने चाहिए। बायोकैटलिसिस वगैरह पूछा जाता है कभी कभी। ठीक, तो इसमें आप एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करेंगे और इनहिबिशन का। एक्टिवेशन एनर्जी वही है, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज करता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सब आप सिंपली यही पूछा ही जाता है हर साल एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड। और आपको ग्राफ वगैरह पूछा जाता है कि सिग्मॉइड ग्राफ किस कैटालिसिस में होगा। ठीक, तो वो सब आप देख लेंगे। और इसी तरह एंजाइम है, एंजाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री में एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स लाइक प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। और उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत बेसिक आता है इसमें। सिंपली आपको इसमें पूछे जाते हैं उसका टेक्निक का जो जनरल प्रोसेस है वो पूछा जाता है। और उसमें एक सी डीएनए लाइब्रेरी है, जीनोमिक लाइब्रेरी है, ये सब पूछे जाते हैं, उनके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये सब आप कर लेंगे। एक उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और जो कि बीएचयू के ही प्रोफेसर ने ये डिस्कवर किया था, तो इसलिए बहुत पूछा जाता है, उनके साइंटिस्ट के नाम वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपका इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें सीडीएनए लाइब्रेरी वगैरह थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोपोगेशन, इससे भी पूछे जाते हैं इनका जनरल प्रोसेस। ठीक, तो ये आपका बीएचयू एंट्रेंस के लिए होगा। इसमें जेनेटिक्स छूट गया, जेनेटिक्स के लिए आप देखेंगे सिंपल मेंडल्स का जो लॉज था वही पूछा जाता है, उससे कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उनका एक्सटेंशन है, जैसे आप को डोमिनेंस कह लीजिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह, ये सब जो पूछे जाते हैं, एपिस्टेसिस वगैरह। तो जो एक्सटेंशन है उससे न्यूमेरिकल आते हैं, और वो भी सिंपली 2-3 न्यूमेरिकल्स होंगे अगर इन्हीं सब पे। और रेशियो बहुत पूछा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस और आपके सप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, ये सब के रेशियो जो है वो पूछे जाते हैं। इन सबसे इम्पोर्टेंट आपका सबसे है, उसमें लिंकेज पूछा जाता है। तो लिंकेज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, उसके न्यूमेरिकल्स की खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ही न्यूमेरिकल आता है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं है या आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो आप लिंकेज के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वो हर एक क्वेश्चन फिक्स रहता है हर साल के लिए। ठीक, तो लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जेनेटिक्स में इतना ही है, और इससे कुछ और रिलेटेड आते हैं। कोडॉन सिस्टम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक, कोडॉन सिस्टम आप उसमें सिंपली याद कर सकते हैं कि कौन सा कोडॉन किस एमिनो एसिड के लिए वो कोडिंग करता है वगैरह, ये सब पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक चीज छूट गई, ट्रांसलेशन मैंने नहीं बताया। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन पूछा गया था, कहाँ होता है, क्या प्रोसेसेस हैं, इन सब से रिलेटेड 1-2 सवाल रहते हैं। ठीक, तो आपका जेनेटिक्स हो गया, बचा आपका प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में आप सिंपली फोटोसिंथेसिस, उसके डिफरेंट साइकिल्स, उसमें एटीपी कैलकुलेशन, यही सब करिए। सिंपली वो नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं, डार्क रिएक्शन कहाँ होते हैं, ये सब पूछ लिया जाता है। एटीपी का आपको अच्छे से कैलकुलेशन आना चाहिए, उस पर भी कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। और आप रेस्पिरेशन में आएंगे, रेस्पिरेशन में भी पूरा साइकिल आपको पढ़ना होगा, साइकिल के पूरे सीक्वेंस याद करने होंगे, एंजाइम्स याद करने होंगे, और एटीपी का कैलकुलेशन वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपके साइकिल्स में कोई कोई इनहिबिटर होते हैं, जैसे जो स्टॉप कर देते हैं साइकिल को, वो इनहिबिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साइनाइड वगैरह होता है, तो उसको पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर उसमें आप मेटाबॉलिज्म पे आएंगे। तो मेटाबॉलिज्म में आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जैसे सुक्रोज है और स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका लोकेशन पूछा जाता है, ये सेल के अंदर कहाँ होते हैं, और इनका साइकिल पूछा जाता है। ठीक, तो आप इसको करेंगे, इनके एंजाइम्स वगैरह भी साइकिल की इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से बीएचयू एंट्रेंस में बहुत कम सवाल आते हैं, पर 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, वो भी रैंडम है, किसी साल आते हैं किसी साल नहीं आते हैं। कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म,
एंड आपका इसी तरह है, आप ये इतना ही आएगा मेटाबॉलिज्म में। कुछ आप एक चीज छूट गई, वो मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली। ठीक है, तो आप यही है आपका सिलेबस, इसी को आपको कंप्लीट करना है। आप नोट्स पे ज्यादा रिलाई करिए, क्योंकि आपके जो थर्ड ईयर के नोट्स होते हैं उससे आप एंट्रेंस क्लियरली कर जाएंगे। ठीक, क्योंकि इस बार क्लासेस नहीं हुए थे तो इसलिए हम लोग को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा थर्ड ईयर का सिलेबस करने के लिए, और हार्डली आपका 60% तो थर्ड ईयर का ही सिलेबस रहेगा। तो आप उसी पे है इस बार, मतलब सेल्फ प्रिपरेशन ज्यादा हो गया है ना। अगर आपका नेक्स्ट ईयर होपफुली अच्छा क्लास चलेगा तो आप उसको अच्छे से करिएगा। जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो ही पूछते हैं एंट्रेंस में, वही सेमेस्टर वाला ही सिलेबस होगा। ठीक, अदर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं पहले। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस बहुत ब्रॉड है और बहुत एक्सटेंड है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसका सिलेबस जो न्यू पैटर्न का सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस, वो डाउनलोड करेंगे। और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, वो मैं आपका नाम बता दे रहा हूँ, वो आप अलग से कर लेंगे। इकोनॉमिक बॉटनी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ उसके सिलेबस में। और एक टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है बट एज ए एंसिलरी सब्जेक्ट उसका वेटेज नहीं रहता है और वो बीएचयू एंट्रेंस में नहीं आता है। ठीक, तो टेक्निक के लिए आप प्रिपेयर करेंगे अदर यूनिवर्सिटीज के लिए, लाइक हैदराबाद में भी आता है और दिल्ली यूनिवर्सिटीज में, और वहाँ पे ये टेक्निक का पोर्शन थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा भी जाता है। मतलब आप जो टेक्निक्स हमारे यहाँ सिलेबस में है उससे भी एक्स्ट्रा पूछा जाता है, तो उनके सिलेबस में जो प्रिस्क्राइब टेक्निक्स है वही आप पढ़िएगा। ठीक, नेक्स्ट है आप हाँ, इकोनॉमिक बॉटनी में आप अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है हम लोग यूज करते हैं, जैसे केवड़ा ऑयल है, वो किस प्लांट से निकाला जाता है, किस पार्ट से निकाला जाता है। ठीक, तो वो उसके प्लांट्स के पार्ट्स का नाम आपको क्लियर होना चाहिए और उसके साइंटिफिक नेम क्लियर होने चाहिए। ठीक, ऐसे ही आपको सेरेल्स हो गए और आपके जो भी स्पाइसेस हैं, मेडिसिन कुछ होते हैं, उनके नाम आपको, ये टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है बट वो अलग से वहाँ एक सिलेबस प्रिस्क्राइब है इसका, तो आप उसको करेंगे। उसके लिए बुक भी है, आप उसको कर सकते हैं। आपको ये इजीली नेट पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी इसके कई चैनल्स पे मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक बॉटनी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग अच्छे से करेंगे। और वहाँ पे प्लांट एंड मेटाबॉलिज्म जो है, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट, ये सब जो अप्लाइड पार्ट्स है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रिप्टोग्राम पे टोटली डिपेंड मत रहिएगा, क्रिप्टोग्राम वहाँ बहुत कम पूछा जाता है। आपको डिफरेंस करना पड़ जाएगा कि ये मतलब लाइफ साइंस का पेपर देने आ गए हैं या बॉटनी का, क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर अप्लाइड पोर्शन पूछा जाता है। ठीक, तो अप्लाइड पोर्शन, तो इसलिए आप बॉटनी एंट्रेंस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब यूनिवर्सिटीज के अलग अलग सिलेबस को अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। इवन अगर आप सिर्फ बीएचयू एंट्रेंस के लिए पूरे फोकस्ड है तो आपका बहुत कम चांस है कि अदर यूनिवर्सिटीज में निकलेगा, क्योंकि यहाँ का सिलेबस बहुत अलग है और अदर यूनिवर्सिटीज का सिलेबस बहुत अलग है बॉटनी एंट्रेंस का। तो आप इसको क्या करेंगे कि आप डिटेल में पहले ही से पढ़ेंगे, ताकि वो आपको लास्ट में रिवीजन करने के लिए अच्छे से समय मिल जाए। नहीं तो आप फिर एक ही जगह कन्फाइंड हो पाएंगे और दूसरा नहीं कवर कर पाएंगे। ठीक, तो इस वजह से आप अदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसका सिलेबस आप बीएचयू के ही तरह मानिए, एकदम इक्विवेलेंट होता है। उसमें बस इलाहाबाद में थोड़ा अलग ये रहता है कि आपको जीके के सवाल पूछे जाते हैं, जनरल हिंदी पूछा जाता है और आपको उसमें इंग्लिश वगैरह भी पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव। तो इस तरह का सिलेबस रहता है उसका, जो कि मैंने इस बार पेपर स्किप कर दिया है, नहीं दिया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट पहले आ गया था बीएचयू का, तो मैंने वो नहीं दिया। तो इस तरह से है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी। और बाकी की अदर यूनिवर्सिटी, जैसे आप एएमयू के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो एएमयू के लिए आपको रिटन पेपर देना होगा। उनका एंट्रेंस क्या होता है, 50% 70 क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और जो 30% होंगे वो आपका रिटन एग्जाम होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा और अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए आपको राइटिंग और आंसर स्किल का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए बॉटनी एंट्रेंस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आपको सब सेमेस्टर सारे एंट्रेंस के लिए आपको अलग से स्ट्रेस देना पड़ेगा, उनके सिलेबस भी बहुत डिफर है एक दूसरे से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप यही सब करिए, जो एक्स्ट्रा है मैंने बता ही दिया। वहाँ एम्ब्रियोलॉजी भी बहुत डिटेल में पूछा जाता है। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है उसमें आप पूरा डिटेल में उसके साइंटिस्ट कौन से किस चीज में इन्वॉल्व थे सब पूछा जाता है वहाँ पे। ठीक, तो उसको उसके लिए आप अलग से कर सकते हैं।
अब अगर बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस की, ठीक, तो इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, जिसमें मैंने बताया था एसपी सिंह, ठीक, इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन, जो कि बीएचयू के ही प्रोफेसर ने लिखा हुआ है, ठीक, तो वो आप बहुत अच्छे से करेंगे और आपको इन्वायरमेंट में उसका इन्वायरमेंट का जो पैटर्न होता है पेपर का, उसमें 60 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होंगे, जो कि कंपलसरी होगा, ठीक, वो भी केमिस्ट्री 12 लेवल तक की रहेगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। इसमें ऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करेंगे, ऑर्गेनिक ज्यादा पूछी जाती है, इनऑर्गेनिक फिर सेकंड नंबर पे और फिजिकल सबसे कम, ठीक। तो 60 क्वेश्चंस आपके इन्वायरमेंट में केमिस्ट्री के रहेंगे। और फिर सेकंड पार्ट में लाइफ साइंसेस, जियोलॉजी एंड फिजिक्स रहेगा, उसमें से आपको कोई एक चूज करना है, ठीक। तो उसमें आप लाइफ साइंसेस के अगर स्टूडेंट हैं तो आप लाइफ साइंसेस चूज करिए, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसमें भी आपको 25 बॉटनी के रहेंगे, 25 जूलॉजी के, ठीक, वो भी आपका बीएससी लेवल तक का रहेगा पूरा, और केमिस्ट्री आपका 12 लेवल तक का रहेगा, ठीक। तो इन्वायरमेंट का यही पैटर्न होगा, और आप ये आसानी से क्रैक कर सकते हैं, इसमें बहुत वो नहीं है। आप 12th का केमिस्ट्री अगर अच्छे से कर लेंगे तो आप सिर्फ केमिस्ट्री भी अटेम्प्ट कर देंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो इसमें बहुत वो नहीं देना है, स्ट्रेस नहीं देना है। थर्ड है बीएड लाइफ साइंसेस। तो बीएड लाइफ साइंसेस का पैटर्न थोड़ा अलग है, उसके लिए आपको फिर अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, जीके के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। एप्टीट्यूड में ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ब्लड रिलेशन ही ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको नंबर फिलिंग वाले भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। और करेंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। करेंट अफेयर्स में जो भी नॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स चल रहे हैं नेशनल लेवल पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट लेवल वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यूपी का दे रहे हैं बीएड का एग्जाम, तो आपकी जो यूपी के गवर्नमेंट है, वहाँ के जो भी एजुकेशन है, गर्ल एजुकेशन, इन सबको जो प्रमोट किया जाता है, स्कीम्स हैं, ठीक, उनके रूल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एजुकेशन के जो स्कीम्स थे वो बहुत पूछ लिए जाते हैं, जैसे 1996 वगैरह में जो भी स्कीम थे वो पूछ लिए जाते हैं। और अभी जो अपडेटेड 2020 का आपका एजुकेशन पॉलिसी का स्कीम है, वो भी पूछ लिया गया था इस बार अपडेटेड, तो आप इस पे भी ज़्यादा रिलाई करेंगे, ठीक। आपके एजुकेशन से रिलेटेड ही करेंट अफेयर ज़्यादा आएंगे, ठीक। कुछ जो जीके के सवाल होंगे वो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इनसे भी रहेंगे, तो वो हार्डली एक एक दो दो सवाल रहते हैं सबसे। तो अगर आप उसको स्किप भी कर देंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, अगर आप अदर पार्ट्स को अच्छे से करेंगे तो, ठीक। आप इस पे करंट अफेयर पे ज़्यादा रिलाई करेंगे। सेकंड पार्ट में आपका अगर आप लाइफ साइंसेज का एग्जाम दे रहे हैं बीएड का, तो उसमें आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, जोलॉजी आएगा एंड बॉटनी आएगा, ठीक। तो लाइफ साइंसेज है तो इसमें बॉटनी, जोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम होंगे, ठीक। वो मिक्स होता है, किसी साल केमिस्ट्री ज़्यादा आता है, किसी साल फिजिक्स, पर आपके बॉटनी जोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होगा। उसमें भी बॉटनी जोलॉजी में आप देखेंगे आपका जो बीएससी लेवल तक का सिलेबस है वही रहेगा, जैसा कि इन्वायरमेंटल साइंस के लाइफ साइंसेज में रहेगा, ठीक। तो यही है ओवरऑल आपका पेपर एनालिसिस। और इसमें मैं एक सजेशन और देना चाहूँगा कि आप इसकी तैयारी करने के लिए, सारी एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, आप स्टार्टिंग से कम 6 मंथ पहले आप अपना तैयारी शुरू करिए, और उसमें एक अपना नोट्स बनाइए। आप दूसरे के नोट्स पे मत डिपेंड रहिए। जैसे होता है ना, सेमेस्टर के लिए आप दूसरे के नोट्स मांग के पढ़ रहे हैं, वो आपको कभी भी एंट्रेंस में बेनिफिट नहीं करेगा। आपको सिलेबस का एक अच्छा एनालिसिस होना चाहिए। अगर आपको एनालिसिस नहीं है, आप सिर्फ टॉपिक्स देख रहे हैं और उसके बारे में पढ़ते जा रहे हैं, तो भी आप बहुत मार्क्स पीछे लैग कर जाएंगे, ठीक। बॉटनी एंट्रेंस का पेपर बीएचयू का थोड़ा इजी होता है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत ज्यादा आती है, और रैंक भी बहुत आगे पीछे होता है, ठीक। सेम मार्क्स पाने वाले बच्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें आपका सेमेस्टर का भी रिजल्ट वेरी हो कर जाता है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सेमेस्टर में भी मेंटेन करिए अपना रिजल्ट, और प्लस आपका एंट्रेंस का, क्योंकि एंट्रेंस में क्या होता है, बहुत से बच्चों का सेम रिजल्ट आ जाता है, और आपके सेमेस्टर का बेसिस रख के आपका रैंक आगे पीछे या आपका एडमिशन रुक जाता है। तो आप इसके लिए सेमेस्टर पे भी बहुत फोकस करेंगे, ठीक। कम से कम 8.5 ग्रेड पॉइंट तो रहना ही चाहिए अगर आप बॉटनी में है तो, ठीक। अब जोलॉजी के लिए कम भी हो सकता है, क्योंकि उनका थोड़ा सिलेबस अलग होता है और थोड़ा टफ भी, ठीक। तो और ठीक, इस तरह से आप प्रैक्टिकल फाइल्स में जो क्लासिफिकेशन लिखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग स्किप कर जाते हैं प्रैक्टिकल फाइल्स की क्लासिफिकेशन, वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि किस क्लास से ये
पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है, ठीक, तो उसको आप बहुत अच्छे से करेंगे पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी और अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और अलग सा उसमें है कि आप टैक्सोनॉमी में देखेंगे जो फैमिली वाले पार्ट है वो कम पूछे जाते हैं, फैमिली मेंबर्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पूछे जाते हैं। साइंटिस्ट जो आपके आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिए हायरार्की जो है उसका आपका जो सीक्वेंस है वो पूछे जाते हैं, ठीक। जैसे इस बार पूछा गया था कि ऑप्सीडा, ऑप्सीडा क्या है हायरार्की में, तो वो एक क्लास है, ठीक। पर बहुत लोग ने उसको गलत किया है क्योंकि वो नहीं आता है दिमाग में। तो इस तरह से चीजें आपको बहुत सीक्वेंस में याद करनी होंगी। काउंटिंग्स पे आप बहुत रखेंगे ध्यान, क्योंकि पीएचडी एंट्रेंस में जो फैमिली वाले सवाल होते हैं उसमें आपको मेंबर्स के नाम दे दिए जाते हैं रैंडमली, और उसको आपको काउंट करना होता है कि हाउ मेनी ऑफ दीज मेंबर्स आर बिलोंग टू द सेम फैमिली, ठीक। तो आप काउंटिंग्स मतलब जब भी आप करेंगे एग्जांपल्स फैमिली में तो उसको बहुत अच्छे से करेंगे। एक एक एग्जांपल उनके आप यूजेस भी देख लेंगे, जैसे कि आपका E4BSE फैमिली है उसमें हैविया एक ट्री है जो कि रबर देता है, नेचुरल रबर, तो वो भी पूछ लिया जाता है। आप मेंबर्स के कुछ कुछ पर्टिकुलर यूजेस भी देखेंगे, ठीक। तो इस तरह से ओवरऑल यही सिलेबस पैटर्न है और यही एनालिसिस है। थैंक यू सो मच भैया। हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने ऑडियंस इंटरेक्शन सेशन के लिए। उसके पहले एक लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग की तरफ से होगा, जो हम लोग नॉर्मली कंफ्यूजन फेस करते हैं कि थर्ड ईयर में जाके, जैसे हम लोग अभी थर्ड ईयर में हम लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो वन विल गो इनटू द यूनिवर्सिटी फिजिकली, हम लोग को दो चीज मैनेज करना होगा, जो होगा कि एंट्रेंस का प्रिपरेशन और उसके साथ फाइल सबमिशन, प्रैक्टिकल फाइल बनाना, क्लास जाना और जो कॉलेज का साइड बाय साइड चलेगा। तो ये कैसे करना है, इसका कुछ टिप्स आप दीजिए। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ ठीक है सिराज भैया, गो ऑन। इसमें आपको बैलेंस करने की जो बात है वो मैंने पहले ही आपको कहा कि आपको कम से कम 6 मंथ का एक गैप लेना ही पड़ेगा, ठीक। तो आप 4 सेमेस्टर से के बिगनिंग में या उससे पहले जो आपका मतलब 6 सेमेस्टर से पहले और 5th सेमेस्टर के बाद जो आपका एग्जाम के बाद जो गैप मिलता है दिसंबर में, आप उसमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं वहां पे, या आप 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना भी बहुत लंबा गैप आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे क्योंकि फिर आपको 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो ज्यादा बर्डन करेगा, क्योंकि वहाँ क्रिप्टोग्राम का ही पूरा सिलेबस है, तो आपकी बहुत फाइल की वर्क हो जाएंगे, वहाँ आप नहीं कर पाएंगे। तो आप उस समय क्या करिए कि जब आप 5th सेमेस्टर में जब आपका एक्सपेरिमेंट होता है, आप उसी समय अपना फाइल कंप्लीट कर लीजिए क्लास में ही बैठ के। तो उसके बाद आपका जो रिटन कमेंट्स पार्ट होता है वो आप कभी भी चाहे तो आप लैब में जाकर के कर सकते हैं, या आप कहीं पे भी रूम पे भी जाके कर सकते हैं, तो वो आप उसी दिन कंप्लीट करिए। नहीं तो आपका मिड सेमेस्टर और फिर एंड सेमेस्टर आने में ज्यादा समय लगता नहीं है, और उसमें क्या होता है कि फाइल का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर लोग दिन रात फाइल ही लिखते हैं। तो आप फाइल को अप टू डेट रखिए, उससे आपका सेमेस्टर का भी मार्क्स बहुत इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका अपडेटेड फाइल है तो आपको नंबर भी ज्यादा मिलेंगे। तो आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। जब जो भी प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, आप जो भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उस समय आप जो भी प्रोफेसर बोल रहे हैं आप वो हर चीज लिखिए, भले वो रफ राइटिंग में लिखिए या चाहे जैसे भी, पर आप हर चीज नोट करिए। कभी कभी क्या होता है जो प्रोफेसर बोल देते हैं वही डायरेक्टली वो क्वेश्चन बना भी देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं सब सारे प्रोफेसर का रहता है, वो कभी कभी एक्स्ट्रा सिलेबस के चले जाते हैं और वही सवाल उनके मन में रहता है और वो बना के एंट्रेंस में दे देते हैं। तो आप बहुत डिटेल में अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा पीछे की सीट ऑक्यूपाई करने की कोशिश मत करिए, आप आगे ही बैठिए और ज्यादा अच्छे से लिसन करिए, सुनिए, ठीक। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर में ये इस पे फोकस करिए, ठीक। हाँ, फ्रेंडशिप का जो है फ्रेंडशिप गोल थोड़ा कम करिए, क्योंकि आपका कंपटीशन वो ज्यादा मैटर करेगा इस समय, है ना, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस करके ही सब आए हैं, तो ऐसे ही ईयर गैप है सबका, तो इसलिए आपको इस चीज का एक वो रहना चाहिए मन में कि ईयर गैप ना हो। तो इसके लिए आपको पूरा अच्छे से सेमेस्टर को पढ़ना है और उसी समय आपको अपना फाइनल नोट्स प्रिपेयर करना है, अपना फाइनल नोट्स, दूसरे का मांग के नहीं, ठीक। तो उसको आप बहुत अच्छे से करेंगे और आपका ये सेमेस्टर मतलब जैसे जैसे सेमेस्टर चलता जाएगा वैसे वैसे आपका फाइनल नोट्स बनता जाएगा। लास्ट में आपकी एंट्रेंस सेमेस्टर और एंट्रेंस दोनों ही ओवरलैप हो जाते हैं, तो वहां पे आपको अलग से समय नहीं मिलेगा। तो उसी समय आपको फर्स्ट, जब आपको 5th सेमेस्टर में आप क्रिप्टोग्राम पढ़ाया जाएगा, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का क्रिप्टोग्राम पूरा ही उस समय रिवाइज करेंगे, ठीक, क्योंकि 5th सेमेस्टर का क्रिप्टोग्राम कंपैरेटिव है,
आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है सारे क्लासेस को, ठीक। तो वहाँ पे आपको एक एक मेंबर को डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, बट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत डिटेल में एक एक मेंबर को पढ़ाया गया है। तो उस समय क्या करेंगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे, जिससे आपका फिफ्थ सेमेस्टर का भी बहुत अच्छा ग्रैप्स हो जाएगा उस सब्जेक्ट में, ठीक। तो कंपैरेटिव करके चलेंगे और उसको भी मेंबर बेस भी पढ़ते रहेंगे। आपका इसी तरह है, सारे सब्जेक्ट में यही करेंगे, और मिनिमम सिक्स मंथ का आपको टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं तो लास्ट मंथ में आप कम से कम 5 मंथ में आप पूरा प्रिपरेशन करिए, लास्ट की 1 मंथ में सिर्फ और सिर्फ पेपर प्रैक्टिस करिए और उसको बैलेंस करिए, ठीक। प्रैक्टिकल्स को अप टू डेट रखिए, अगर आप उसको जमा करते जाएंगे तो आपके लिए बर्डन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, बॉटनी में बहुत सेक्शन कटिंग कराया जाएगा, तो आप बहुत वो हो जाएंगे ना, हेजिटेट हो जाएंगे लिखने में भी, और आपको फिर पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, तो आप दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। और थोड़ा वही घूमने फिरने का प्लान कम करिए सिक्स सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक। फोर्थ सेमेस्टर तक सब कुछ चलता है, फिफ्थ सेमेस्टर से सीरियस होना पड़ता है, ठीक। अभी ऑनलाइन जैसे चल रहा है क्लासेस, तो आप ऑनलाइन में आपके पास और समय मिल जाएगा अपना प्रिपेयर करने का, नोट्स आपके पास सिलेबस भी है, आप सिलेबस को ही रिलाई करिए, उसको ही अच्छे से करिए, ठीक। इस तरह से आप अदर यूनिवर्सिटीज का, जैसे मैंने बताया कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए अभी से ही, प्रिंट करा लीजिए, और सिलेबस को एक एक टॉपिक को ही एक दिन में, अगर आप एक भी टॉपिक करेंगे आपका 6 मंथ में पूरा सिलेबस हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आप उसको, अगर आप हायर स्टडी करे रहेंगे तो आपका बीएचयू एंट्रेंस बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि बीएचयू का सिलेबस बहुत ईजी है और बहुत कम भी है, ठीक। तो आप यही टारगेट रखिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका सिलेबस बहुत अच्छा है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा, प्लस आपका दोनों ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यही है मेरा टिप्स कि आप बहुत रेगुलर रहिए, बहुत रेगुलर काम करिए, ठीक है। स्वप्निल, यू कैन प्रोसीड। हाँ, so as far as geology practical is concerned, the things are that as far as the animal kingdom is practical is done, so in a single day you are given in bulk a huge number of specimens to watch and to make on your practical copy. So that becomes a quite trafficking for you to maintain that, because you have gone with a few pages as usual to the practical hall, and you are going to get a 20 of fish specimens, a 15 of frog specimens to make. So the simple trick is that they often say that what you are watching, that you make, but the thing is that what is being seen on the table, that is there on the book also. So whenever you get the free time, you have to make the specimens yourself, whether it is being shown in the class or not, so that it may save your time in the actual practical time. Because if there is a Physalia, if there is a Aurelia, it will look the same way as it is looking in the book. So you can go, if you have some extra time, some free time, you can utilize that, making that. Otherwise, rest of the practicals are not so much heavy tasking, so you can do it daily by daily. That is another thing that I myself haven't followed the daily by daily schedule, but that piles up the work a lot. So I will like to suggest you to do the job daily by daily, because it becomes irritating at the end of the week to do. And if by some chance or by some matter, if some of the practicals are being left, then one day you are getting on Saturday, the second last week of the day of the week, and that is for your field study. These days you are not going to feel that thing, that the weekend is 2 days in zoology department, but yes, that happens, and you get 2 days at the end of the week, so you can utilize for the leftover practicals. Between theory and practical classes, you come to get a 2-hour gap, which you waste or you use in eating the lunch and sitting in the garden. So you can utilize that also. And the another thing is that try to bring the things in a single direction. As far as the geology syllabus is concerned, you see a thing that except animal kingdom, rest of the parts are the same as that of another exams, like molecular biology, immunology, or the rest of the syllabus which you are going to refer. So what you are reading in the class, you just extrapolate that in order to study the things of another examination. You need not to read molecular biology for BHU semester in separate direction, and for IIT JAM in separate direction. So bring the things in single direction, so that you can cover huge distances in a single step and in a single way.
So do not diverse things, try to converse things in order to cover more topics in small time. Thank you भैया. Now we'll take questions from the audience. आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग ग्रुप चैट में लिखते रहिए. There are some questions already. Anukul is asking, please repeat the name of ecology book. Shiraj भैया, please repeat the name of the इकोलॉजी की जो ecology book. बुक है उसका नाम है जेपी सिंह. जेपी सिंह वो है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस एंड कंजर्वेशन. ओके, अगर हो सके तो हम लोग आप लोगों से बुक का नाम बाद में भी लेके ग्रुप में डाल देंगे. ओके, आई It's विल not मेक an अ issue लिस्ट for the एंड book. सेंड यू. Yes, that will be helpful. Bhavesh has asked that ये स्वप्निल भैया के लिए है. नेट, यूजीसी नेट और एमएससी जूलॉजी का सिलेबस कितना डिफर करता है? अगर मैं थर्ड ईयर से प्रिपरेशन करना चाहता हूँ तो दोनों साथ में करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? भवेश का क्वेश्चन है स्वप्निल भैया. No, not at all. There is no problem. Except animal kingdom, there is nothing different between the syllabus of net and zoology, and that is, I think, the biggest advantage of taking zoology as the honors, that you do not get the different things from that of the net. So you can start your preparation from third year also. That will be beneficial, and the BHU syllabus, which the topics which is included in the BHU syllabus, that will be very good introductory start for your net examination. भवेश का और एक क्वेश्चन है. ही इज आस्किंग बीएचयू का और अदर यूनिवर्सिटीज का कितना डिफर करता है जूलॉजी का सिलेबस एमएससी में, एमएससी का? Except there is no difference except animal kingdom, because in different universities animal kingdom is taught in different depth. Like in our university it is taught like comparative anatomy, and the classification is focused and general feature is focused. But in other universities, like they focus on the flight muscles of bird and the fangs in the snake's mouth, or the personalized zoology of any animal they focus upon. So that is the only difference. Otherwise, rest of the cream portions like genetics, cell biology, molecular biology, they are same. That is, they are not so different. Next question is from Meghna Shukla. My question is for Swapnil. Why did you choose MSc in zoology over biochemistry? What advantages does MSc in life science has over MSc in interdisciplinary subjects like biochemistry? Yes, this is a question which is still, I am also trying to find the answer of this question, and this battle is still on in my mind. But yes, there is some probable answer that you can choose zoology over biochemistry if you are not so determined about the specialization you want to get into. Like if you are interested in biochemistry, that yes, I have to make my career in this domain, go for biochemistry. But if you are not still determined, you can take zoology, because up to first semester, up to first year, you get to read all things like cytogenetics, endocrinology, biochemistry, everything. So you get to choose in the second year. Up to that time, you have the extra enough time so that you can think of what the domain I am interested in, what the domain I can take for. So that is the advantage, that you should choose zoology over biochemistry. Otherwise, if you are determined for biochemistry, then better you can proceed for biochemistry. There is no qualitative difference in BHU biochemistry and BHU zoology, but the difference is only that whether you want to get confined and selective before you start the MSc or after 1 year of MSc. And as far as life science is concerned and zoology is concerned, life science obviously gives you the exposure to the cream topics and to the industrial approach. But I think zoology is also very good, because many of the academic jobs like Kendriya Vidyalaya or being an assistant professor in different colleges, that requires mainly zoology. They also require life science, but mainly zoology. So zoology gets a lead there. Otherwise, if you want to get research specialization or industrial approach or industrial exposure, then you should go for life science. Thank you, Bhaiya. Next question Aarti se hai. Bhaiya, do we have our entrance as soon as we finish with our semesters? Yes. It can be even between the mid of the semester. से क्लास कर सकता है.
अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुमित। जेएनयू के लाइफ साइंस एंट्रेंस के लिए कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्या एक बॉटनी या जूलॉजी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा? See, if JNU is concerned, so I think right from 10th class to BSc third year, they ask anything from anywhere, like maths, science, physics. Maths, not maths, but physics, chemistry, biology, botany, zoology, everything they are going to ask from 10th to BSc third year. So I cannot demarcate that what they are going to focus upon. मैं भी इसमें कुछ बोलना चाहूंगा। इसमें आपको जेएनयू के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ा दिक्कत जरूर हो सकता है, क्योंकि इसमें जोलॉजी का पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है ना। तो आप जोलॉजी के लिए आप थोड़ा इस पे फोकस रखिए, क्योंकि बॉटनी थोड़ा कम पूछा जाता है और बॉटनी का जो सिलेबस है उससे बहुत कम, मतलब बहुत बेसिक पूछा जाएगा बॉटनी। वो आप अगर बॉटनी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी कर जाएंगे, लेकिन आपका जोलॉजी बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए इसके लिए। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो आनी ही चाहिए 12th लेवल की। और कोई क्वेश्चन है नहीं यहाँ पे। और किन्हीं का क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मेघना का और एक क्वेश्चन है कि वो शायद स्वप्निल भैया के लिए, दोनों के लिए, डिड यू प्योरली सेल्फ स्टडी और एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस लाइक ऑनलाइन कोर्स और एनी कोचिंग? For my part, it was I had taken a coaching, but I won't suggest you to take that because that will be a lot of time consuming and irritating. So this is the fact. From my side, मैंने कोचिंग तो एकदम नहीं किया है, ठीक। और आप YouTube का हेल्प ले लीजिए, आप अनअकैडमी ऐप का हेल्प ले लीजिए और आप अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको वही रैंक दिला पाएगा। आप किसी कोचिंग में अगर आप इनरोल भी करते हैं तो आप फिर भी अपना सेल्फ स्टडी आपको ज्यादा करना होगा, क्योंकि कोचिंग आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए आप अपना नोट्स बनाइए, या आप कोचिंग का मटेरियल भी यूज कर रहे हैं तो भी आपको एक अपना एनालिसिस होना चाहिए, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए सिलेबस का, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आना मैथ्यूज का है। शी इज आस्किंग, स्वप्निल भैया, कैन यू प्लीज रिपीट द टॉपिक्स वी नीड टू फोकस इन मैथ्स फॉर आईआईटी जैम? मैथ्स आईआईटी, okay sure. आईआईटी जैम बीटी के लिए मैथ्स। हाँ, so it is calculus, that is differentiation and integration, then it is complex number, limit and derivative, probability, mean, median, mode, deviations, matrix. Okay. Hello भैया। मेघना ने, hello। हाँ सुमित, go on. There is another question from मेघना। ये सुमित, हम ये क्वेश्चन कर ले फिर तुम करो। Okay, sure, okay। When did you start preparing seriously for entrance exam? Second or third year? मेघना का क्वेश्चन। Second year, 5th semester. Sorry, I mean fourth semester. From my side, I have started from 5th semester, in the beginning of 5th semester. Okay, thank you. Sumit, go on with your question. हेलो भैया, मेरा क्वेश्चन दोनों से ही है। अगर माने कि कोई भी अगर इज एमिंग फॉर एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, तो मतलब दोनों के सिलेबस सेम रहते हैं? अगर हम जूलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट है या बॉटनी ऑनर्स के स्टूडेंट है, तो दोनों के सिलेबस सेम रहते हैं एनवायरमेंटल साइंस में? सिलेबस जो है एनवायरमेंटल साइंस का वो एकदम सबके लिए कॉमन है। उसमें कुछ भी आपको अलग से, आप किसी भी बैकग्राउंड से, तो आपको उसके कोई हेल्प नहीं करेगा। उसमें आपको तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे। एक जो ऑप्शनल होता है आपका लाइफ साइंसेस, उसमें बॉटनी और जूलॉजी के दोनों ही क्वेश्चन होंगे और दोनों ही बहुत बेसिक होंगे, तो आप किसी भी फील्ड से हैं तो भी आप कर ले जाएंगे। और आपका जो फर्स्ट सेक्शन है केमिस्ट्री, वो 12th लेवल की होगी, जो कि एकदम बेसिक होगा। वो भी आप 12th के लिए तो सबकी कॉमन है, तो वो आप कर ले जाएंगे, वो कंपलसरी भी है, तो आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है।
भैया और एक क्वेश्चन था। हेलो मेरे को यस 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 हेलो 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 भैया और एक क्वेश्चन था। जी एक एंट्रेंस यस होता है CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें कि हम इसका सिलेबस क्या होता है जूलॉजी और बॉटनी में? CUCET में वो आपका लाइफ साइंसेज होगा, जिसमें बॉटनी और ज़ूलॉजी अलग नहीं आते हैं। उसका एक ही एग्जाम होगा, उसमें सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंक्लूड होंगे। उनका आपका सिलेबस इंट्रेंस का उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं, उनका सिलेबस आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके भैया। हेलो भैया, मुझे ये पूछना था, मुझे ये जैसे हम लोग के सेमेस्टर्स के बीच में हमारे एंट्रेंस होंगे और हमारा सेमेस्टर ऑलमोस्ट अप्रैल एंड से शुरू हो जाएगा और मई में हमारे खत्म होगा और मई में हमारे सारे एंट्रेंस होंगे अगर जूलॉजी और बॉटनी देखा जाए तो उस चीज। हेलो आरती, आवाज नहीं आ रही है आपकी। Can you type in the chat your questions, आरती? आरती अगर कनेक्शन, हाँ अब आवाज आ रही है। गो ऑन। हाँ बोलिए। चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर कोई क्वेश्चन है तो, अगर आवाज नहीं आ रही तो। आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, आपका ये सवाल है? हाँ, क्योंकि अप्रैल के एंड से हमारे सेमेस्टर शुरू हो जाएंगे और उसमें प्रैक्टिकल्स भी होंगे और सेमेस्टर्स का और एंट्रेंस का थोड़ा इसका सिलेबस जैसे MCQs। समझ गया मैं। ये आपका प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है। आपको गैप मिल जाएगा कुछ 2-4 दिन का। आपके जो सेमेस्टर के पेपर होंगे उनके बीच में ही आपका एंट्रेंस आ जाता है, BHU एंट्रेंस। तो वहां पे आपको हार्डली 1-2 दिन का गैप मिलेगा। तो इस वजह से आप पहले ही से सेमेस्टर ही में आप तैयारी करते रहिए, सो दैट कि आपको अगर लास्ट में भी प्रैक्टिकल्स के लिए गैप मिलता हो, प्रैक्टिकल के बीच में एंट्रेंस पड़ता है, तो आप प्रैक्टिकल में थोड़ा कम समय दीजिए और आप अपना सिलेबस रिवाइज कर लीजिए। आपका 6th सेमेस्टर बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। सेमेस्टर के टाइम पे आपको सिर्फ 5th और उससे पहले जो बनाए गए नोट्स हैं उसको देखना होगा, ठीक? तो आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, उस समय आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ जाएगा। एक हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। हाँ, मेघना का एक क्वेश्चन है स्वप्निल भैया से कि डिड यू अप्लाई फॉर एनी इंटर्नशिप at BSc level? Will you mention those and how to apply? No, I wanted to apply it, but as I said, I was stuck in the preparation in the very starting of the 4th semester. So I utilized that summer for the entire preparation and all. So I couldn't do it. But yes, the internship is very important, because in the interviews like TIFR and all, they would like to prefer you if you have done some internship like thing, or if you have any laboratory connection. So I don't have so much of experience that how to apply it, but I will soon answer this question after talking my friend who has applied for internship at many places. So keep this question on standby. Okay भैया। सुमित का एक क्वेश्चन है कि स्वप्निल भैया, बायोकेमिस्ट्री एंट्रेंस के लिए लेनिंजर बुक सही रहेगा? Leninger book for starting of the few chapters, like amino acids classification, and then the introduction of the amino acids, titration, and that of like the first chapter which you are being taught in the zoology department by Trigun sir. For that portion you can refer to the Leninger book. Otherwise, for rest of the portions like DNA replication, translation, and transcription, I had suggested already the Watson's book. If you want, then you can go for Leninger. Otherwise, if you seriously want to read Leninger, then read just the first chapter of biochemistry, which is being taught in the zoology department by Trigun sir. ओके भैया, मैं भी इसमें कुछ बोलना चाहूंगा बायोकेमिस्ट्री के लिए। आप अगर बॉटनी के स्टूडेंट हैं और आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे, बायोकेमिस्ट्री वैसे कॉमन होता है सबके लिए, वही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। पर आप बॉटनी के अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक किताब है बायोकेमिस्ट्री की, बुचानन की,
बुचानन एक राइटर है, उनकी किताब है, आप उसको प्रेफर करिए, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक, क्योंकि जो आप साइकिल्स वगैरह पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां पे जो एंजाइम्स वगैरह यूज होते हैं वो आपको बुचानन में प्लांट से रिलेटेड ज्यादा अच्छा बायोकेमिस्ट्री का मटेरियल मिल जाएगा। Thank you भैया। Looks like we don't have any more questions, so we will proceed with the vote of thanks. Hello, am I audible? हाँ स्वामी जी, तो उससे पहले कल का अनाउंसमेंट कर देते हैं। कल जो वेबिनार होगा वो फिजिकल साइंस के टॉपिक के साथ होगा, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग करके जो है उसका डिटेल आपको दे देता हूँ। Sure. हाँ, so tomorrow will be the second day of our series of success mantra.